students. In the previous class, we have started with the topic mitosis. We said that mitosis is a type of equational division, a division in which from one parental cell, two daughter cells will be formed. These two daughter cells will be having the equal amount of genetic material as present in the parent cell. We know that mitosis is the process which involves first of all nuclear division and then after the cell division. मतलब पहले न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होंगे, मतलब दो न्यूक्लियस बनेंगे, and then after it will happen that the cytoplasm will separate, or you can say the protoplasm will separate and give rise to the two daughter cells. This process of formation of two daughter cells is called cytokinesis. But before understanding cytokinesis, we need to understand what are the steps of karyokinesis, that is nuclear division. So in the previous class, we had started with the prophase. We have discussed that what are the events of early prophase. As we know, in interphase, the genetic material will be indistinct network-like chromatin threads which will be spread throughout the nucleus. As this phase changes into early prophase, the condensation of this chromatin takes place. These chromatin fibers are going to become short and thick and therefore slightly more visible. This happens with the help of a protein which is known as condensins, which help in condensation of the chromosome. Another important event that happens in early prophase is the replicated centrosomes will develop esters around themselves, that is fine microtubular fibrils, and from this esters, that is estral rays, along with the centrosome was known as ester. So ester formation is going to take place, but this is going to happen only in animal cell because plant cells do not have centriole. Now we move on to the middle prophase. What are the events of middle prophase? In middle prophase, the condensation of chromosomes continues. मतलब अभी भी वो जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे थे उनका कंडेंसेशन जो है वो अभी भी चल ही रहा है, वो अभी तक पूरी तरह से कंडेंस कॉम्पैक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए कंडेंसेशन इज गोइंग टू कंटिन्यू. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन begins to disintegrate. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाने लगेगी, डिसइंटीग्रेट होने लगेगी. तो वो मिडिल प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है और लेट प्रोफेज आते आते तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है. और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमार्क्स द प्रेजेंस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द मेटाफेज. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है. The chromosomes starts moving towards periphery of nuclear membrane. मतलब जो क्रोमोसोम्स हर जगह पे न्यूक्लियस में स्कैटर्ड थे उसकी जगह पे अब ये क्रोमोसोम्स कहाँ जाने लगेंगे, न्यूक्लियर एनवलप के पेरीफेरी में, मतलब बाउंड्री की तरफ. इसीलिए सेंट्रल एरिया जो है वो थोड़ा खाली सा हो जाएगा क्योंकि सारे क्रोमोसोम्स साइड्स की तरफ पे मूव हो रहे हैं. न्यूक्लियोलस जो है दैट इज ऑल्सो नाउ गोइंग टू रिड्यूस इन साइज. अभी तक अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियोलस के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी. अर्ली प्रोफेज के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स दो ही हैं, एक है एस्टर फॉर्मेशन और एक है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन. फिर मिडिल प्रोफेज की बात करते हैं तो मिडिल प्रोफेज में कितनी चीजें हो रही है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन अभी भी चालू है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगी है। थर्ड, क्रोमोसोम्स जो है वो पेरिफेरी की तरफ मूव होने लगे हैं। अभी भी और एक चीज हो रही है, दैट इज द एस्टर्स, मतलब वो जो सेंट्रोसोम्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। द सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग, सेंट्रोसोम्स, यहाँ पे सेंट्रोसोम मतलब अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल ही हम हमेशा लिखेंगे। सो सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से ऑपोजिट पोल्स की बात कर रहे हैं। एंड न्यूक्लियोलस, और अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियोलाई है या ज्यादा, जितने भी न्यूक्लियोलस हैं, दे डिक्रीज इन साइजेस एंड आर अटैच्ड टू one or two chromosomes। तो ये सारे इवेंट्स को हमें डायग्रामेटिकली अगर बताना है, तो जैसे हमने अर्ली प्रोफेज का डायग्राम ड्रॉ किया था, वैसे ही हम मिडिल प्रोफेज का डायग्राम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल, सॉरी, so we'll be able to see the cell membrane. Now the nuclear membrane is not intact, so we will be showing a disintegrated nuclear membrane। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब हम इंटैक्ट नहीं बता रहे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होने लगी है, डिसइंटीग्रेट होने लगी है, ब्रेक होने लगी है। इसीलिए अनदर थिंग वी हैव टू शो इज द सेंट्रोसोम्स, a pair started moving towards the opposite poles। तो सेंट्रोसोम्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होते होते एट द एंड ऑफ, जब हम लेट प्रोफेज की बात करेंगे तो ये सेंट्रोसोम कहां तक आ जाएंगे, टू द ऑपोजिट पोल। अभी ये मूव हो रहे हैं, यहाँ पे होंगे उनके एस्टर्स, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द एस्टर्स, राइट, एंड हियर विल बी the thin spindle fibers that have formed. There is formation of spindle fibers that will begin. Spindle fibers क्या होते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अल्टीमेटली क्रोमोसोम के साथ अटैच होने के लिए बने गए हैं, पर अभी इनिशियल प्रोफेज चल रहा है, इसलिए अभी स्पिंडल फाइबर सिर्फ फॉर्म हुए हैं। तो जब ये सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव हो रहे हैं, दे विल बी रिमेनिंग कनेक्टेड थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स उनके बीच में रहेंगे, और स्पिंडल फाइबर्स हैं क्या, थ्रेड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर प्रोटीनेशियस फाइबर्स। ओके, अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं। तो क्रोमोसोम्स थोड़े ज्यादा कंडेंस हो चुके हैं और पेरीफेरी की तरफ मूव होने लगे हैं, लीविंग तो क्रोमोसोम्स जो है वो साइड्स की तरफ मूव हो रहे हैं, लीविंग द सेंट्रल एरिया एम्प्टी। तो यहाँ पे आप कितनी चीजें देख सकते हो, आई एम नॉट लेबलिंग इट अगेन इन एवरी डायग्राम, पर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, दिस विल बी द सेंट्रोसोम, दैट इज द एस्ट्रल रेस विद द सेंट्रोसोम, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स, this is the disintegrating nuclear membrane, and these are the chromosomes. Okay, not totally condensed but still condensing chromosomes which are still condensing. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज, दैट इज लेट प्रोफेज। अब प्रोफेज खत्म होने आया है, खत्म ही हो चुका है लेट प्रोफेज मतलब, तो प्रोफेज खत्म होते होते क्या देखने को मिलेगा, तो एज द प्रोफेज इज नियर टू एंड, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन has now disintegrated, मतलब यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रही है इन द मिडल प्रोफेज। जब हम लेट प्रोफेज की बात करते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, ठीक है।
each chromosome has one centromere and two chromatids. One centromere with two chromatids. मतलब हर एक में एक सेंट्रोमियर है और एक दो क्रोमेटिड्स होंगे. ठीक है. Another thing is nucleolus has disintegrated. ऑर्गेनल्स जो होंगे वो भी डिसोशिएट हो जाएंगे यहाँ पे. एंड द क्रोमोसोम्स विल बी स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. क्या होगा? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी और क्रोमोसोम्स जो है वो अब कंडेंस हो चुके हैं ज्यादा, तो ज्यादा कंडेंस मतलब मैक्सिमली कंडेंस जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री नहीं है. तो डायग्राम ड्रॉ करते ही आपको पता चलेगा कि हम कैसी बात कर रहे हैं. There is no nuclear membrane and there is no nucleolus. Okay, so no nucleolus, no nuclear membrane. Simply we have to draw the centrosome. सेंट्रोजोम हमने यहाँ पे बताया है. तो दूसरा सेंट्रोजोम जो होगा वो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सेंट्रोजोम मूव हो रहा है. अब हम लेट प्रोफेज में देखेंगे कि सेंट्रोजोम हैज ऑलरेडी रीच्ड द ऑपोजिट पोल. Centrosome has already reached the opposite pole. The chromosomes, condensed chromosomes actually we can say, will be scattered यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है they are going to extend spindle fibers are going to extend from one pole to another. स्पिंडल फाइबर जो है वो पूरी तरह से एक्सटेंड होने वाले एक पोल से दूसरे पोल तक, जिन्हें इंटरजोनल मतलब दूसरे ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स भी कहा जाता है. थिन फाइबर्स जो है एक्चुअली अब क्या होगा कि ये जो थिन फाइबर्स है they are going to attach with the centromeres of the chromosomes. They are going to align, मतलब क्रोमोसोम ऐसे अलाइन हो जाएंगे कि वो जो सेंट्रोमियर है उससे अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स आर गोइंग टू अटैच टू व्हाट? द सेंट्रोमियर. बट दिस इज गोइंग टू हैपन इन द मेटाफेज. इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ ऐसा बताया है कि स्पिंडल फाइबर्स डेवलप हो चुके हैं, एक पोल से दूसरे पोल तक एक्सटेंड हो रहे हैं और क्रोमोसोम्स जो है वो स्कैटर हो चुके हैं पूरे साइटोप्लाज्म में. ये एक ऐसा टाइम है जिसमें ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ईआर है, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होके साइड पे पेरीफेरी पे आ जाते हैं. ठीक है. तो और एक चीज यहाँ पे, द सेंट्रोसोम्स हैव moved towards the opposite poles. ठीक है. तो इतने इवेंट्स होंगे प्रोफेज के. अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 2, मेटाफेज. सो नाउ वी टॉक अबाउट, जैसे कि प्रोफेज में अभी तक क्या हुआ है, प्रोफेज में अभी तक सारी इवेंट्स जो हुए हैं उसमें हमने क्रोमोसोम का कंडेंसेशन बता दिया, हमने बता दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया है, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो गया है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, एक पोल से दूसरे पोल तक वो कनेक्ट कर रहा है, सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे मूव हो चुके हैं. तो ये सारे जनरलाइज्ड इवेंट्स हो गए किसके? प्रोफेज के. मेटाफेज इज द फेज, very very essential phase in which what is going to happen? Condensation of chromosome is complete.
मतलब मैक्सिमली कंडेंस्ड होंगे। सो मैक्सिमम विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर किसी को भी सेल साइकिल स्टडी करनी है तो सबसे इजी फेज जो माइक्रोस्कोप में दिखेगा वो कौन सा होगा? मेटाफेज। ये इसीलिए सबसे इजीली दिखता है क्योंकि इस स्टेज में क्रोमोसोम्स मैक्सिमली कंडेंस्ड होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम कंडेंस्ड क्रोमोसोम को देखना इजी है। जबकि प्रोफेज है या तो इंटरफेज है, इन सब फेजेस में क्रोमोसोम्स अभी भी थोड़े थिन होते हैं, थोड़े थ्रेड लाइक होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, तो वो दिखते नहीं है इजीली। जबकि मेटाफेज में बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाने की वजह से क्रोमोसोम्स बहुत ही प्रॉपरली विजिबल होते हैं। आगे हम बात करते हैं अबाउट इवेंट्स ऑफ मेटाफेज। So as we said that metaphase is the stage in which the condensation of the chromosome has got completed and therefore the chromosomes will be showing the maximum visibility। मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें बहुत ही क्लियरली क्रोमोसोम्स दिखेंगे अगर वो मेटाफेज में है तो, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स मैक्सिमम कंडेंस्ड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मेटाफेज में कौन से इवेंट्स होते हैं। तो मेटाफेज का सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड द मेटाफेज। हमने सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया, हमने सेंट्रोसोम्स बता दिए हैं जो ऑपोजिट पोल्स पे ऑलरेडी चले गए थे ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। ओके, दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट वेयर at the opposite poles। So what is going to happen in the metaphase is that the chromosomes, that is the first of all the spindle fibers are going to attach to the structures known as centromere or kinetochores of the chromosomes। They are going to attach to the kinetochores। So first step we mentioned, हमने लेट प्रोफेज में क्या देखा? That spindle fibers are very close to chromosome पर उन्हें अभी अटैच नहीं हुए। जैसे मेटाफेज होगा वैसे ही the spindle fibers from the opposite poles will now attach to the centromere or you can say kinetochores of the chromosomes। These spindle fibers will align the chromosomes at center और इक्वेटर ऑफ द सेल। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे से जो स्पिंडल फाइबर्स डेवलप हुए हैं, स्पिंडल फाइबर्स मतलब माइक्रोट्यूब्युलर फाइबर्स जो बने हैं, प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स जो बने हैं, ये प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स कनेक्ट करेंगे किसे? टू द क्रोमोसोम्स। दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद द क्रोमोसोम्स। पर क्रोमोसोम के कौन से पार्ट के साथ कनेक्ट करेंगे? तो दे विल बी कनेक्टिंग विथ वी कैन से सेंट्रोमियर और वी कैन से kinetochores। Kinetochores are small disc-like structures located on the either sides of the centromere। सेंट्रोमियर की दोनों तरफ एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर्स कहते हैं और काइनेटोकोर्स से कनेक्ट होंगे दीज स्पिंडल फाइबर्स। एक बार कनेक्ट हो जाने पर अब ये क्रोमोसोम्स जो रैंडमली स्कैटर्ड थे साइटोप्लाज्म में, कोई ऊपर था कोई नीचे था,
हमने लेट प्रोफेज में ड्रॉ किया था, दैट क्रोमोसोम्स वर एट वेरिएबल पोजीशंस। इन सबको क्या करेंगे, दे विल पुश एंड पुल देम सो दैट दे गेट अलाइंड एट द सेंटर ऑफ द सेल और यू कैन से एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। क्या करेंगे, फाइबर्स, these fibers will first of all attach to the chromosomes and then after they are going to arrange the chromosomes in such a way that all chromosomes get aligned in the center of the cell। तो सारे ही सेंटर पे अरेंज हो जाएंगे। और इसमें ऐसा भी होता है, यहाँ पे तो हमने ऐसे डायग्रामेटिकली नहीं बताया, बट मोर कॉमनली जो छोटे साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट क्रोमोसोम्स विल बी इंटीरियर एंड द वन विच आर लार्जर इन साइज वो थोड़ा पेरीफेरी की तरफ अरेंज्ड होते हैं। मतलब थोड़े क्रोमोसोम्स जो है वो इंटीरियर में होंगे जो छोटे होंगे, और थोड़े जो बड़े होंगे दे विल बी लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरीफेरी। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स को अरेंज कर दिया है इक्वेटर पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज congregation। This process is known as congregation, and the chromosomes aligned at equator is known as metaphasic plate। It is known as मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, ये प्रोसेस मतलब क्या, ये पुश और पुल करके क्रोमोसोम्स को बीच में लाना, राइट। क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स तो जो है वो सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो गए। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, दे विल पुश एंड पुल एंड अरेंज द क्रोमोसोम इन द सेंटर। तो ये क्रोमोसोम जो सेंटर पे अरेंज हुआ है, ये प्रोसेस of bringing the chromosomes to the center उसे क्या कहा जाता है, congregation। The process of bringing the chromosomes to the center is called congregation, and this whole set of chromosomes which is aligned at the equator, ये इक्वेटर पे ऐसे अरेंज हो गया है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इक्वेटोरियल प्लेट या तो फिर मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, chromosomes aligned to the center is known as मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज में यहां तक हो जाएगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे आ गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे, जिसे कहते हैं द थर्ड स्टेज, दैट इज एनाफेज। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस्ड, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर्स, क्रोमोसोम्स अलाइंड एट द इक्वेटर। ये तीन इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो मेटाफेज में होगी। अब आएगा एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, थिंग्स आर द सेम। यहाँ पे अगेन वी आर हैविंग द सेंट्रोसोम lying at the opposite poles. We are still having the spindle fibers, but now what has happened that the centromeres what will happen is now the chromosomes, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स है जिसमें एक सेंट्रोमियर और दो क्रोमैटिड्स है, अब क्या होगा, now is the stage in which the centromere splits from between। सेंट्रोमियर जो है बीच में से स्प्लिट हो रहा है। जब सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो जाता है तो ये जो क्रोमैटिड्स है वो अलग हो जाएंगी, and therefore now the chromosome will have वन सेंट्रोमियर विथ वन क्रोमेटिड। हर एक क्रोमोसोम में अब क्या बचेगा, एक सेंट्रोमियर और एक क्रोमेटिड। और ये जो क्रोमोसोम फाइबर्स, मतलब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, these स्पिंडल फाइबर्स आर गोइंग टू पुल these क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द पोल्स। कहाँ पे पुल करते जाएंगे, पोल्स की तरफ पुल करते जाएंगे। इसीलिए सेंट्रोमियर जो है वो बीच में से स्प्लिट हो गया।
इसलिए सेंट्रोमियर सेपरेट हो गया और हर एक सेंट्रोमियर के पास कितनी क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, इसीलिए वन सेंट्रोमियर विथ वन क्रोमेटिड starts moving towards the opposite poles. Who is pulling them towards that? The spindle fibers are pulling them, and therefore 4 of the chromosomes are moving to one pole and another 4 chromosomes are moving to the opposite pole. यहाँ पे हमने कितने क्रोमोसोम्स बताए हैं, 4 क्रोमोसोम्स बताए, पर डिफरेंस क्या है मेटाफेज और एनाफेज में? यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर और 2 क्रोमेटिड्स है, जबकि यहाँ पे क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर और एक क्रोमेटिड है. This is also the chromosome and this is also the chromosome. The difference is whether it has one chromatid or whether it has 2 chromatids. Okay? तो यहाँ पे क्या होगा, हम थोड़ा पॉइंट्स लिख देते हैं. एनाफेज के अंदर the first thing that is going to happen is the centromere splits. Centromere is going to split. The spindle fibers attached to the centromeres pulls them towards the pole. Each daughter chromosome now has one centromere and one chromatid. There will be one centromere and one chromatid. So there will be 4 daughter chromosomes moving on this side and 4 daughter chromosomes moving on the opposite side. मतलब जब ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे मूव हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स होंगे और यहाँ पे भी क्या होंगे, 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. राइट? तो एनाफेज के वक्त ये मूवमेंट देखने को मिलेगी. एनाफेज में ये जो हमें सेपरेशन देखने को मिल रहा है, ये सेपरेशन कैसा होगा कि अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो उसके दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल है, पर अगर सब मेटासेंट्रिक है तो ये जो सेपरेट होंगे वो कैसे होंगे, one will be slightly smaller, one will be longer. जो दूसरी तरफ सेपरेट होगा वो भी कैसा होगा, one will be smaller and one will be longer. अगर ये सब मेटासेंट्रिक है तो मेटासेंट्रिक होगा तो क्या होगा, दोनों ही तरफ इक्वल, दिस विल बी मेटासेंट्रिक. अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक तरफ एक्सट्रीमली स्मॉल, एक तरफ एक्सट्रीमली लॉन्ग, दिस विल बी फॉर एक्रोसेंट्रिक. इफ वी टॉक अबाउट टिलोसेंट्रिक तो ये कैसा होगा, और इसके बेसिस पे एनाफेजिक क्रोमोसोम्स जो सेपरेट होते हैं दे आर गिवन शेप. दिस इज गिवन द शेप ऑफ वी. वी शेप दिया है किसे, मेटासेंट्रिक को. क्यों मेटासेंट्रिक को, क्योंकि उसके दोनों आर्म्स की लेंथ सेम थी, इसलिए मेटासेंट्रिक. इसे शेप दिया गया है एल शेप, बिकॉज दिस इज लुकिंग लाइक एन एल, इसीलिए एल शेप. इसे दिया गया है जे शेप और इसे दिया गया है टिलोसेंट्रिक को आई शेप. मतलब मेटासेंट्रिक chromosomes will be V shape when they separate during anaphase. Submetacentric will be L shape. The acrocentric will be J shape and the telocentric will be I shape. However, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आपको समझा रही हूँ कि जब ये सेपरेट होंगे तो जरूरी नहीं है कि सबकी आर्म्स का लेंथ सिमिलर हो, थोड़ा बहुत वेरिएबल लेंथ होगा. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द फेज दैट इज टेलोफेज. So in metaphase the chromosomes were aligned at the equatorial plane. In anaphase the centromere has split from between and the chromosomes are moving to the opposite poles. Each chromosome in anaphase will be having one centromere with one chromatid. So the number of chromosomes which will be getting accumulated at the poles will be same as the number of chromosomes in the parental cell. क्या मैंने स्टेटमेंट दिया, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मूविंग एट ईच पोल विल बी सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंटल सेल. पेरेंटल सेल में 4 क्रोमोसोम्स हमने बताए थे मेटाफेज में.
जब ये सेपरेट होके एनाफेज में पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो ईच पोल इज हैविंग हाउ मेनी क्रोमोसोम्स 4। दूसरे पोल पे भी कितने क्रोमोसोम है 4। इसीलिए क्या हुआ कि पेरेंटल सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे और दो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी कितने होंगे 4 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड इट फॉर 2 to 3 times in order to understand each and every point. अब हम बात करते हैं अबाउट टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हुआ होगा, वी हैव द सेल, वी हैव द सेंट्रोसोम्स, and now there will be again the reformation of the nuclear membrane. What will happen? Reformation of the nuclear membrane. The spindle fibers which were present are now very few. तो मतलब अब स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जो स्पिंडल फाइबर्स ऑलरेडी पूरे सेल में प्रेजेंट थे वो स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी कि अब यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म होने लगेगी। मतलब जो न्यूक्लियर एनवलप प्रोफेज के एंड में डिसइंटीग्रेट हो गई थी वो अब वापस क्या हो रही है, रीइंटीग्रेट, मतलब वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगी। जो न्यूक्लियोलस अर्ली प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हो गया था, सॉरी मिडिल एंड लेट प्रोफेज में, वही न्यूक्लियोलस अब क्या होगा, इट इज अगेन गोइंग टू रीअपीयर। न्यूक्लियोलस इज गोइंग टू अगेन फॉर्म एट न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये एक ऐसी साइट है जहां पे न्यूक्लियोलस बनता है। And the chromosomes which were very condensed during the metaphase and anaphase, now there will be again, what will happen, again they will be decondensed। मतलब कितने हो जाएंगे, 4। एक तरफ कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब each nucleus will be having 4 chromosomes। each nucleus मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस 2 बन चुके हैं। अब कैसी कंडीशन है, सेल एक है पर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 है। और दोनों न्यूक्लियस में क्या हुआ है, 4 क्रोमोसोम्स है। क्यों 4? क्योंकि एनाफेज के वक्त 4 जो है वो एक पोल पे गए थे एंड अनदर 4 वेर एट अनदर पोल। डू यू रिमेम्बर? और जब वो क्या होगा, अब जो कंडेंस क्रोमोसोम्स थे उनकी जगह पे क्या हो जाएगा, वापस डीकंडेंस हो जाएंगे। मतलब जो क्रोमोसोम्स है उनकी जगह पे वापस क्रोमेटिन फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब वापस ये सेल जो है अब क्या करेगा, नाउ द सेल विल अंडरगो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहले मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू रिफॉर्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is going to reform, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गई थी वो वापस फॉर्म हो रही है। न्यूक्लियोलस will develop or will reappear at nucleolar organizer region. Nucleolar organizer region is a site where the nucleolus develops. वापस न्यूक्लियोलस डेवलप होगा। Each nucleus will have the same number of chromosomes as present in parental cell. Parental cell had 4 chromosomes. Here each nucleus is also having 4 chromosomes. सिर्फ डिफरेंस क्या है, उसमें 2 क्रोमेटिड्स थी, इसमें 1 क्रोमेटिड है। पर ये 1 क्रोमेटिड में से वापस 2 क्रोमेटिड्स होने ही वाली है। कब होने वाली है? When this is also going to undergo the next interphase। क्योंकि नेक्स्ट इंटरफेज करेगा तब वो वापस G1 S और G2 फेज में जाएगा। वापस S फेज में जाएगा तो क्या होगा, 1C will change to 2C, 2C will change to 4C। मतलब वापस वो क्रोमेटिड बनने तो वाली है पर जब ये सेल इंटरफेज में जाएगा तब। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, स्पिंडल फाइबर्स at
at the poles begin to disintegrate. At end of telophase, two nucleus have formed, right? And the organelles, जो organelles हैं, they will also again rearrange, they will also reappear. तो इतनी इवेंट्स होंगी टेलोफेज. और टेलोफेज के बाद अब जो लास्ट स्टेप होता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पर साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट. क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस बन गए, इसलिए कैरियोकाइनेसिस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया. अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस. और साइटोकाइनेसिस में प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा और ये दोनों जो है वो सेल्स, ये जो है वो अलग हो जाएंगे. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. अभी तो क्या बना है, टू डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं. फिर क्या होगा, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ईच विथ देयर ओन न्यूक्लियस.